students. I'm Shobha and I'm going to start 11th class book Snapshot, the first chapter, that is The Summer of the Beautiful White Horse. It's a very beautiful story of a beautiful white horse and the time is summer. So before going to start the story, let's discuss the characters. Main characters are Aram, the narrator, Murad, the narrator's cousin, Khorsov, its uncle, their uncle, and John Byro, a farmer. Okay, the main characters are basically these two, Aram and Murad. The story moves around these two characters. Okay, Khorsov is a kind of an irritable personality. He always impatient and he has a pet dialogue. What is that? It is pay no attention, it has no harm. हमेशा ही बोलते रहते हैं इस पे ध्यान मत दो, इसका कोई नुकसान नहीं है. चाहे वो कोई भी कितना भी बड़ा काम हो रहा हो, he always says pay no attention, it has no harm. So these dialogues of this person, Mr. Khorsov's dialogue, it always arouse humor in the story. Although the matter is very serious, suppose if there is a fire on his house or someone's house, he always say, pay no attention, there is no harm. And John Byro. John Byro is a farmer. He had a horse. Okay, a beautiful horse. So basically we are going to read the story of John Byro's horse. That is very beautiful. And the sub-characters also are in there in this story. The first one is Arab Khorsov, Uncle Khorsov's son. Okay. Zorab, Murad's mother. Murad जो basically हमारे two main characters हैं. तो मुराद की मम्मा Zorab जो एक main role play करती है, father sorry. And Aram's mother, Aram की mother हैं. Although इनका कोई ज़्यादा role नहीं है story में, but they have existence in the story. And Fit Vinzian, a farmer. Although this character is invisible in the story, the main characters, they will use the farm of this person. This was all about the characters. Now let's talk the story in brief, in nutshell. Okay, are you ready? Yeah. This story is written by William Sarrayon. Okay, and this whole story is about a tribe and they are the member of Garo-Galanian of Armenia. Armenian you can see in the map, world map near the Iran. Okay, and this tribe was famous for their honesty. They were very honest. Although they are poor, but still they were very honest, and that's for they famous. Two Armenian boys. This was the story of two Armenian boys because they were the native of Armenia. That's why they were Armenian boys, and we have already discussed these two boys, Aram and Murad. Okay, and these two boys were longing to ride. उनकी बहुत keen desire थी riding करने की. Riding a horse, but they can't afford a horse because they were very poor. So what happened in the story? They stole the horse. And the horse, I told you when we were discussing the characters, they stole the horse of John Byro. I told you na that the owner of the horse was John Byro. So they stole the horse of John Byro. कोई honesty के लिए famous है, लेकिन फिर stealing कर ले, that's not good na. So let's see what will happen if they'll find that they have stolen a horse. Let's see in the story. Now let's start the story. The Summer of the Beautiful White Horse by William Sarrayon. One day back there in the good old days when I was 9. So the narrator is explaining the story when he was 9, and he was explaining the story of one day when everything was very good and the world was full of every imaginable kind of
magnificence. What is magnificence? Magnificence, the quality of being magnificent. मतलब हर चीज़ उस टाइम उसके लिए क्या थी? इमेजिनेबल थी, एक तरह से शानदार, हर चीज़ शानदार थी उसके लिए. एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम. लाइफ कैसी थी? डिलाइटफुल, खुशियों से भरी हुई, हर चीज़ अच्छी लगती थी. मिस्टीरियस ड्रीम थी एक लाइफ. मिस्टीरियस क्या होता है? मिस्टीरियस मीन्स डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन और आइडेंटिफाई. तो हर चीज़ में रहस्य था, एक मिस्ट्री थी. उस टाइम पे यंग एज होती है तो सर हर चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन एक्साइटमेंट रहती है ना कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आसपास, सब जानने की इच्छा रहती है. दैट इज़ मिस्ट्री, mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me. सब उसे कैसे समझते थे? उसका कज़न था मुराद, उसे सब क्रेजी मानते थे, लेकिन मैं नहीं, मुझे छोड़कर. Came to my house at 4 in the morning and woke me up, tapping on the window of my room. एक दिन क्या हुआ? उस दिन जिस दिन वो अपनी स्टोरी बता रहा है, उस दिन वो अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे वो उनके घर आता है और उसकी विंडो को टैप करता है, मीन्स नॉक करता है. आराम, ही सेड. आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. मैं एकदम से जंप किया, मैंने बेड से और बाहर देखा विंडो के. आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सो. मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि जो मैंने देखा. It wasn't morning yet, but it was summer, and with daybreak not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. तो जब नैरेटर विंडो से बाहर देखता है तो क्या पता चलता है उसे अभी मॉर्निंग नहीं हुई है, समर का टाइम था, तो इसीलिए डे ब्रेक मीन्स सनराइज तो उसे दिख रहा है, लेकिन मतलब ये सुबह का टाइम हो चुका था. अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में हर एक कोने में हल्की हल्की सुबह होनी स्टार्ट हो गई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ समर. इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग. इतनी लाइट काफ़ी थी मुझे समझने के लिए कि मैं ड्रीम नहीं ले रहा था, कोई सपना नहीं ले रहा था. माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स. क्या देखा उसने कि उसका जो कज़न है मुराद, वो एक सुंदर से वाइट हॉर्स पे बैठा था. I stuck my head out of the window. मैंने अपना सिर बाहर निकाला विंडो से. And rubbed my eyes. और अपनी आँखों को रब किया. Yes, he said in Armenian, it's a horse. You are not dreaming. उसने मुझे अर्मेनियन लैंग्वेज में बोला. अर्मेनिया में रहते थे तो वहाँ की लैंग्वेज थी अर्मेनियन, ठीक है. इट इज़ अ हॉर्स. उसने मुझे बताया अपनी लैंग्वेज में कि ये हॉर्स है. यू आर नॉट ड्रीमिंग. तुम ड्रीम नहीं देख रहे हो, सपना नहीं देख रहे हो. मेक इट क्विक, जल्दी करो. इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, अगर तुम इस पे राइड करना चाहते हो, घुड़सवारी करना चाहते हो. I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. मैं अपने कज़न मुराद को जानता था, उसे हर चीज़ में एंजॉय करना, चाहे दुनिया को कोई और इंसान है वो शायद इतना नहीं करता होगा जितना मेरा कज़न एंजॉय करता था हर चीज़ को. Who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. लेकिन अब जो मैंने देखा वो मैं बिलीव नहीं कर सकता था, बिलीव से कुछ ज़्यादा था. In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longings had been longings to ride. Longings, yearning desire, मतलब बहुत ज़्यादा डिज़ायर थी उसकी पुरानी मेमोरीज़ को. अगर वो सोचता है उसके बारे में तो सबसे ज़्यादा उसकी जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती थी उसमें ऑफ राइडिंग करना उनकी सबसे ज़्यादा बड़ी डिज़ायर थी उस टाइम पे. दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट. इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर. ये बहुत अच्छा पार्ट था, लेकिन अगर दूसरी साइड देखी उनकी लाइफ की कि वो बहुत पुअर थे. दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ. ये मुझे अलाउ ही नहीं करता था, परमिट नहीं करता था, मतलब परमिशन नहीं देता था जो मैंने देखा, और उसे एंजॉय करने की वो परमिशन नहीं देता था. वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन. तो सारे जो थे वो लोग पॉवर्टी से जूझ रहे थे, उनकी पूरी जो ट्राइब थी वो गरीब थी.
every branch of the Garogalian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. Garogalian, it's an Armenian tribe. तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में अगर हम गैरोग्लेनियन ट्राइब की बात करें तो सारी की सारी फैमिली जो थी वो पॉवर्टी में थी, लेकिन कॉमिकल पॉवर्टी, हर चीज़ को एंजॉय करना भी जानते थे. नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी टू कीप अस विद फूड इन आर बेलीज. कोई नहीं जानता था कि हम हमारी बेलीज में, हमारे पेट में हम भोजन कैसे डालते हैं. नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, ना कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो उनको पता था कि सब उनका घर कैसे चलता था. मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आर ऑनेस्टी, सब कुछ होने के बावजूद भी नैरेटर की जो ट्राइब थी वो फेमस थी उनकी ऑनेस्टी के लिए. वी हैड been famous for our honesty for something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we liked to think was the world. तो उस तरह से उनके पास शायद पैसा नहीं था, लेकिन उनकी जो ट्राइब थी वो पूरे वर्ल्ड में फेमस थी जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ऑनेस्टी, और यही ऑनेस्टी उनकी वेल्थ थी. वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग. तो उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनकी ट्राइब के हर लोगों की कि वो सबसे पहले अपने आप पे, अपनी ट्राइब पे प्राउड करते थे. उन्हें कभी फील नहीं होता था कि हमारी जो ट्राइब है वो हम पुअर हैं. और दूसरी उनकी कैरेक्टरिस्टिक थी दैट दे वर ऑनेस्ट. एंड थर्ड वन वाज दैट दे बिलीव व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. तो कहते कोई भी पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं था जो हम हमारी एडवांटेज ले सके, हमारी पॉवर्टी की या फिर हमारी ऑनेस्टी से. लेट अलोन स्टील. तो वो अब उसे बताता है कि चलो थोड़ा स्टीलिंग कर लेते हैं. हॉर्स लेके आया था अब किसी का, तो कहते चलो थोड़ी स्टीलिंग कर लें. हम तो पॉवर्टी के लिए, हमारी ऑनेस्टी के लिए वैसे ही बहुत फेमस है, तो क्यों ना हम थोड़ी स्टीलिंग कर ही लें, जिससे कोई बिलीव ही नहीं करेगा, कोई मानेगा ही नहीं. Consequently means as a result, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it. तो सब कुछ होने के रिजल्ट क्या हुआ, उसने उसकी बातों से इतना इंस्पायर हो गया नैरेटर, तो उसको लगा कि चलो ठीक है. वो सिर्फ इस टाइम पे देख सकता था सिर्फ हॉर्स को, कितना मैग्निफिसेंट था. मैग्निफिसेंट मीन्स शानदार. तो उस टाइम पे नैरेटर जो है अपनी मेमोरीज को रिकॉल करता है, कहता है कि मैं उस टाइम पे उसे स्मेल कर सकता था. सो लवली, वो बहुत शानदार, बहुत लवली थी. इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, इवन मैंने उसे ब्रीथ करते भी सुना. सो एक्साइटिंग, आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद और विद मी और विद एनी ऑफ द अदर मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली. नरेटर को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो सोच ही नहीं पा रहा था कि कभी उनके पास भी कोई हॉर्स होगा जिस पे वो राइड करेंगे, या वो या उसका कज़न मुराद या उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर. asleep or awake because I know my cousin Murad couldn't have bought the horse. तो उसे पता था, वो समझ नहीं आ पा रहा था कि वो जाग रहा है सो रहा है, क्योंकि उसे वो जानता था उसका कज़न मुराद कभी कोई हॉर्स खरीद ही नहीं सकता है, बिकॉज दे वर पुअर. Because if he couldn't have bought it, he must have stolen it. अगर उसने खरीदा नहीं है तो ज़रूर उसने चुराया होगा. And I refused to believe he had stolen it. लेकिन उसने मानने से विश्वास कर दिया. नैरेटर को ये विश्वास खुद को ही नहीं हो रहा था कि वो कभी चोरी कर सकता है. क्यों? कि उनकी जो ट्राइब है वो फेमस थी किसके लिए? ऑनेस्टी के लिए. No member of the Garogalian family could be a thief. कोई भी मेंबर गैरोगिलियन फैमिली का थीफ नहीं हो सकता है. आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स. पहले तो उसने देखा, स्टेयर करना मीन्स देखना कॉन्टिन्यूसली. कज़न को देखा, फिर उसके बाद उसने क्या देखा? हॉर्स. देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटन मी. तो पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर मतलब वो पायस मीन्स होली, स्टिलनेस एक स्थिरता आना, एक ठहराव आना, एक एंड ह्यूमर दैट इज टू
मेक यू लाफ, है ना, जो हंसी दे। तो दोनों चीज़ें थी, मेस्मराइज्ड होना, मेस्मराइज भी कर रहा था, उसे अट्रैक्ट भी कर रहा था, दूसरी तरफ उसे शॉक्ड भी हो रहा था, फ्राइटेंड भी था वो, उसे डर भी लग रहा था, है ना। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? मैंने मुराद को कहा कि तुमने कहाँ से खरीदा है ये, स्टील किया है, चोरी किया है ये हॉर्स? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। उसने मुझे कहा कि अगर तुम्हें राइड करना है तो तुम बाहर आ जाओ, विंडो से बाहर आ जाओ। लीप आउट करना मतलब जंप आउट करना। इट वॉज ट्रू देन, ही हैड स्टोलन द हॉर्स। तो उसकी बात से क्लियर तो हो गया कि उसने चोरी किया था ये हॉर्स। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज। तो उसने सिर्फ मुझे यही ऑप्शन दिया, इनवाइट किया कि राइड करना है या नहीं करना है, जो जिसमें से मुझे एक चूज़ करना था। और उसे पता था, उसे उसमें कोई और ऑप्शन ही नहीं था उसके पास, ऑब्वियसली उसे राइड तो करना ही था। वेल, इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। तो उसे ये लग रहा था कि उसने अपने आप को ये एक कहते हैं ना कि अंडरस्टैंड कराया है कि स्टीलिंग अ हॉर्स जो है राइडिंग के लिए, इट इज़ नॉट एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। अगर कुछ और हम स्टील करते हैं, चोरी करते हैं, वो राइड करने के लिए चोरी करना हॉर्स को, इट इज़ नॉट सेम। सच एज मनी, अगर हम कुछ और चुराते हैं आप मनी के लिए तो फिर वो चोरी है, लेकिन हॉर्स को राइडिंग के लिए चुराना, दैट इज़ नॉट स्टीलिंग। इट वॉज हिज ऑन वर्ड्स, ऑन परसेप्शन ओनली, नैरेटर्स। For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. You were very crazy about it. तो जिस चीज़ों के लिए आप बहुत क्रेजी होते हो, पागल होते हो, उन चीज़ों को चुराना, it is not stealing. If you were crazy about stealing horses, the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing. जिस तरीके से हमने जिस पर्पस के लिए स्टील किया था हॉर्सेस को, इट इज़ नॉट स्टीलिंग। इट वुडेंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स। तो वो अपने आप को समझाने के लिए बोल रहे हैं कि अगर हम लोग कुछ चीज़ को भी चुराते हैं और जब तक हम उसे सेल नहीं कर देते मनी के लिए, तब तक वो स्टीलिंग, तब तक वो चोरी कंसिडर नहीं होगी। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, जिसके लिए हमें पता है हम कभी भी उस हॉर्स को सेल नहीं करेंगे मनी लेने के लिए। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सेड। मैंने बोला कि मुझे कुछ कपड़े तो पहने दो। पुट ऑन मीन्स टू ड्रेस वन सेल्फ इन। तो मैंने उसे बोला कि मुझे कपड़े तो पहनने दो। ऑल राइट, ही सेड, बट हरी। ठीक है, पर जल्दी करो। आई लीप्ड इनटू माय क्लोथ्स। जल्दी से उसने वो जंप किया, मतलब जल्दी से वो कपड़े डालने के लिए उठा। आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड, यार्ड मीन्स आंगन, फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद। और हॉर्स पे बैठ गया उसके पीछे। दैट ईयर आई लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। बिहाइंड आर हॉर्स वॉज द कंट्री। और उनके घोड़े के पीछे कौन था? पूरा का पूरी कंट्री, मतलब जैसे वो विलेज या उनका जो भी एरिया था, जो जिसको वो अपना वर्ड मानते थे, तो वो सारा कुछ क्या था? उनके पीछे था। विनयार्ड्स, ऑर्चिड्स, इरिगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड्स। तो अपने एक सीनरी को रिप्रेजेंट करता है नैरेटर की, उस जो उनके विलेज में, जहाँ पे वो जिस टाउन के एज पे रहते थे, वहाँ क्या क्या था, मेन चीज़ों को डिफाइन करता है कि विनयार्ड्स थे जहाँ पे वो विनयार्ड is a kind of a plantation of grapevines typically producing grapes used in wine making. तो वाइन, ग्रेप से वाइन बनाई जाती है, तो उनकी जो जहाँ पे प्लांटेशन होती है ग्रेप्स की, दैट इज़ विनयार्ड। और ऑर्चिड्स, अ पीस ऑफ एनक्लोज लैंड प्लांटेड विद फ्रूट ट्रीज। तो जहाँ अ काइंड ऑफ गार्डन, है ना। एप्पल ऑर्चिड्स भी हो सकते हैं, ग्रेप्स भी हो सकती है, और भी बहुत चीज़ें हो सकती है ना। गार्डन इट्स बेसिकली। इरिगेशन डिचेस, डिचेस हमें पता है ना, एक तरह से खाई। तो जहाँ पे इरिगेशन हो, जिससे इरिगेशन करते हैं, पानी होता है उसमें, है ना, तो उससे इरिगेशन की जाती है। कंट्री रोड्स, उनके विलेज की जो बाउंड्री की रोड्स हैं, वो सब क्या था? उनके पीछे थी।
In less than 3 minutes we were on Olive Avenue. पहले वो वॉलनट्स एवेन्यू को, जहाँ पे वॉलनट्स के ट्रीज थे, प्लांट्स थे, उनको क्रॉस करा, फिर उसके आगे आगे क्या आया, ऑलिव एवेन्यू आया, प्लेसेस आए, है ना. एंड देन द हॉर्स बिगिन टू ट्रॉट. ट्रॉट मीन्स रन एट अ मॉडरेट पेस विद शॉर्ट स्टेप्स. तो धीरे धीरे हॉर्स ने दौड़ना स्टार्ट किया. The air was new and lovely to breathe. The feel of the horse running was wonderful. जैसे उसने धीरे धीरे रनिंग करना स्टार्ट किया तो नैरेटर यहाँ पे फील कर रहा है एयर को. दैट वॉज सो प्लेजेंट. My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. तो उसने, जो क्रेजी माना जाता है उसका कज़न मुराद, उसने क्या किया, हॉर्स पे जब वो राइडिंग कर रहा था तो उसने सिंगिंग करना स्टार्ट कर दिया. आई मीन ही बिगेन टू रॉर. एक्चुअली जो वो सिंग कर रहा था वो सिंग नहीं कर रहा था, लेकिन ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, तो रोरिंग करना स्टार्ट करा. द नैरेटर इज एक्सप्लेनिंग हिज सिंगिंग लाइक दैट. एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर. स्ट्रीक मीन्स एन एलिमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड काइंड इन समवंस कैरेक्टर. तो किसी में कोई स्पेशल एक कैरेक्टर होता है ना, तो उनको लगता है कि उनकी वहाँ हर फैमिली में एक अलग सा ही कैरेक्टरिस्टिक्स थे. एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड इन द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आर ट्राइब. और मुराद जो था वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता था, जहाँ पे वो जो एक डिसेंडेंट ही था कि उनके एंसेस्टर्स से ही उसे कुछ अलग अलग सी, अजीब सी, क्रेजी सी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती आ रही थी. बिफोर हिम वॉज आर अंकल खोरसोफ. मुराद से पहले उसके अंकल थे खोरसोफ. एन एनॉर्मस मैन, एक बहुत बड़े से आदमी, विशाल, large in size, enormous, with a powerful head of black hair. जिनका हेयर जो था बड़ा सारा, एक पावरफुल उनका हेड था, with black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valleys. और उनकी जो मूछें थी बड़ी बड़ी, वो भी लार्जेस्ट मूछें और सिर के लिए वो बहुत फेमस थे पूरी उस जगह पे. A man so furious in temper, बहुत ही अजीब सनकी सा आदमी था अपने टेम्पर में, अपने बिहेवियर में. सो इरिटेबल, हमेशा इरिटेट रहते थे. सो इम्पेशेंट, बहुत इम्पेशेंट था, बिल्कुल धैर्य नहीं था उनमें, है ना. दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग. वो इतने अजीब थे, इतने इम्पेशेंट थे कि वो किसी को भी अगर कोई बोल रहा है, उनकी खुद की रोरिंग से, खुद की इतनी तेज़ आवाज़ से वो किसी को भी रोक सकते थे बात करने के लिए. इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. वो हमेशा एक ही डायलॉग उनका ये फिक्स था, हमेशा ये बोलते थे, इट इज़ नो हार्म, इसका कोई नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन, इस पर ध्यान मत दो. दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट. Once it was his own son, Arak, running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. एक बार क्या हुआ, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसके पापा हमेशा, उसके जो मुराद के अंकल थे खोरसोफ, वो हमेशा बोलते थे पे नो अटेंशन, इट इज़ नो हार्म, देयर इज़ नो हार्म, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए. तो एक बार क्या हुआ, उनका बेटा था अराक खोरसोफ, उसके अंकल का, तो वो 8 ब्लॉक्स क्रॉस करके बार्बर की शॉप पे आता है, जहाँ पे मिस्टर खोरसोफ जो थे अपनी मोस्टेश को, अपनी मूंछों को ट्रिम करवा रहे थे. तो उनका बेटा आके बोलता है कि उनका घर जल रहा है. दिस मैन खोरसोफ सेट अप इन द चेयर एंड रोड. तभी वो अपनी चेयर से खड़ा होता है, जोर से चिल्लाता है, रोरिंग करता है, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो. द बार्बर सेड, बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर. तो बाबर ने कहा, नाई ने बोला कि तुम्हारा बेटा कह रहा है कि तुम्हारा घर जल रहा है. सो खोरसोफ रोर्ड, इनफ, बहुत हुआ, इट इज़ नो हार्म, आई से, मैंने कह दिया, इसका कोई नुकसान नहीं है. माई सन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन. मेरा कज़न जो था मुराद, वो भी उन्हीं का नेचुरल डिसेंडेंट ही तो था. ऑल्दो मुराद्स फादर वॉज जुरैब, हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स. जबकि अंकल खोरसोफ तो कैसे थे, वेरी क्रेजी एंड डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन ना. बट मुराद्स फादर, ओन फादर मिस्टर जुराब, हु वॉज वेरी प्रैक्टिकल, वो बहुत प्रैक्टिकल थे, एंड नथिंग एल्स, से ज़्यादा कुछ नहीं.
दैट्स हाउ इट वॉज इन आर ट्राइब, और यही सब चीज़ें हमारी ट्राइब में हैं. अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, एक आदमी जो है अपने उसे मतलब हो सकता है उसका जो ऊपर की स्किन है वो उसको उसे फादर से मिली हो, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों बेटा और सन की फादर की जो स्पिरिट है, आत्मा है, थिंकिंग है, माइंड है, वो एक जैसा हो. इट इज़ नॉट एग्जैक्टली सेम. The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. What does capricious means? Given to sudden and uncountable changes of mood or behavior. कि चेंज आ जाता है एकदम से बिहेवियर में, देर इज़ नो रीज़न बिहाइंड दैट, है ना, एकदम से चेंज हो जाए मूड में. एंड व्हाट इज़ वेग्रेंट? वेग्रेंट इज़ अ पर्सन विदाउट a settled home or regular work who wanders from place to place and lives by begging. जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? वेग्रेंट. जिनका कोई परमानेंट हाउस नहीं है और खाना वगैरह कैसे खाते हैं? बाय बेगिंग, मांग मांग के अपना लिविंग करते हैं. तो उनके जो ट्राइब में डिस्ट्रीब्यूशन था ऑफ मैन स्पिरिट, अगर अलग अलग तरह के अलग अलग माइंड के लोग थे, वो क्यों थे? जस्ट बिकॉज दे वर वेग्रेंट, एक जगह पर टिकते नहीं थे, है ना. सोसाइटी का भी बहुत इफेक्ट होता है, हम सोसाइटी से बहुत कुछ सीखते हैं. तो और कैप्रिशियस भी हैं, अलग अलग स्पिरिट्स हैं, अलग अलग माइंड थे उन सब के. वी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंग, हम राइडिंग कर रहे थे और मेरा जो कज़न है मुराद साथ साथ में क्या कर रहा था? सिंगिंग. फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री. हम सब जहाँ भी थे हम दोनों, लेकिन बाकी सबके लिए क्या था? हम उसी कंट्री में हैं, पुरानी कंट्री में. वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आर नेबर्स वी बिलोंग्ड, जहाँ पे हमारे पुराने जो नेबर्स हैं, जहाँ से बिलोंग करते हैं, सबको लग रहा था कि हम वहाँ हैं. वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने इतनी दूर तक उसे दौड़ाया, रनिंग कराई जहाँ तक कि वो कर सकता था. At last my cousin मुराद said, get down, नीचे उतरो, I want to ride alone. अब मुझे अकेले राइड करनी है, मुराद ने बोला नैरेटर को. Will you let me ride alone? I asked. फिर उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे अकेले राइड करने दोगे? That is up to the horse, my cousin said. Get down. तो उसके कज़न ने भी बड़े स्मार्टली आंसर दिया, ये तो अब हॉर्स पे है कि वो तुम्हें करने देगा या नहीं, चलो नीचे उतरो. The horse will let me ride, I said. तो नैरेटर ने कहा हाँ वो मुझे करने देगा राइडिंग. We shall see, he said. Don't forget that I have a way with the horse. मुझे हैंडल करना आता है, मुझे पता है ये किस तरीके से चलते हैं. उसने बड़े स्मार्टली आंसर करा. Well, I said, any way you have with the horse, I have also. अगर तुम्हारा कोई भी तरीका हो, लेकिन मेरा खुद का भी अपना एक वे है. For the sake of your safety, he said, let us hope so. मैं तो सिर्फ उसने बोला कि मैं तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही बोल रहा था. Get down, all right, I said. But remember, you have got to let me try to ride alone. लेकिन तुम्हें मुझे चांस देना ही होगा, इसे याद रखना. I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted. तो उसने हील किया, उसके हील्स पे किक किया हॉर्स के और जोर से चिल्लाने लगा, वजीरे रन, दौड़ो. द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स. हिंड मीन्स बैक लेग्स, है ना, पीछे की लेग्स पे वो दौड़ने लगा, स्नॉट करने लगा जोर जोर से, जैसे नाक से आवाज़ें निकालते हैं ना सोते हुए इंसान करता है. एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट. और इतनी तेज दौड़ पड़ा, एकदम से बर्स्ट हो गया, मतलब बहुत तेज से एक्सप्लोसिव सा हो गया दौड़ने में, फ्यूरी स्पीड से, बहुत तेज स्पीड से. दैट वॉज वेरी लवलीस्ट, बहुत सुंदर था वो. थिंग आई हैड एवर सीन, इतना लवलीस्ट था जितना वो देख सकते थे. माई कज़न मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच. इरीगेशन डिच तक उसने पूरी राइडिंग करी. क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 minutes लेटर रिटर्न्ड ड्रिपिंग वेट. तो मुराद हॉर्स राइडिंग कर रहा था, तो ड्राई ग्रास से लेके डिचेस तक, इरिगेशन डिचेस तक उसने राइडिंग करी. फिर उसके बाद उसने डिचेस को क्रॉस किया एंड देन आफ्टर 5 minutes वो क्या किया, वापस आ गया. ड्रिपिंग वेट, भीगा हुआ, गीला हो चुका था तब तक वो, क्योंकि इरिगेशन डिचेस को, खाई को उसने जहाँ से इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं, वहाँ से क्रॉस किया था. तो ऑब्वियसली वो क्या हो गया था, गीला हो चुका था और
भीगते हुए वो वापस आ गया. द सन वॉज कमिंग अप. अब सुबह हो रही थी. नाउ इट्स माई टर्न टू राइड आई सेड. माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स. नीचे उतर गया वो हॉर्स से. राइड ही सेड. उसने कहा राइड कर लो. आई लिप्ड to the back of the horse and for a minute knew the most awful fear imaginable. जब वो जल्दी से हॉर्स पे उसके बैक पे बैठा और तभी 1 मिनट के अंदर अंदर उसे पता चला कुछ समथिंग डरावना सा इमेजिनेशन हुआ उसे. द हॉर्स डिड नॉट मूव. तो उसे इमेजिनेशन हुई कि वो उसने मूव ही नहीं किया है हॉर्स ने. किक इनटू हिज मसल्स माई कज़न मुराद सेट. उसने कहा कि उसकी मसल पे किक करो फिर वो रन करेगा, राइड करेगा. वट आर यू वेटिंग फॉर. किस चीज़ का वेट कर रहे हो तुम. वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट. सब बाकी उठ जाएं पूरे इस पूरी हमारे ट्राइब के एरिया के लोग जो हैं, यहाँ पे कंट्री मीन्स उनका जो अपना एरिया है वहाँ के लोग उठ जाएं उससे पहले हमें इसे वापस करना होगा. आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स. उसने वही किया जो उसने मुराद ने कहा करने को. वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड. और फिर से वो क्या करने. रियर मीन्स द बैक पार्ट ऑफ समथिंग, स्पेशली अ बिल्डिंग और व्हीकल. तो किसी का भी बैक पार्ट, यहाँ हम हॉर्स के बैक पार्ट की बात करें तो उसने वही अपने बैक पार्ट को उठाना शुरू कर दिया और स्नॉट करना शुरू कर दिया, नाक से आवाज़ें निकालना. देन इट बिगेन टू रन. और फिर तभी उसने रनिंग करना स्टार्ट कर दिया. आई डेंट नो व्हाट टू डू. मुझे नहीं समझ में आया कि क्या हुआ. इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड्स to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikran Halabian, where it began to leap over vines. तो उसने वाइन या उसे जाना कहाँ था हॉर्स को, राइडिंग कहाँ करनी थी नैरेटर को, इरिगेशन डिचेस की तरफ. लेकिन हॉर्स कहाँ जा रहा था, विनयार्ड की तरफ, वो भी किसके, डिकन हेलाबियन के. द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल. उसने 7 वाइन्स जो बेलें होती हैं उनको उन पे जंप किया. देन इट कॉन्टिन्यूड रनिंग. और उसके बाद वो दौड़ने लग गया. माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड. और फिर उसका कज़न आया भागते हुए रोड पे, क्योंकि वो तो रोड की तरफ जा रहा था हॉर्स. आई एम नॉट वरीड अबाउट यू ही शाउटेड. उसने बोला कि मैं तुम्हारे लिए, अपने कज़न के लिए कोई वरीड नहीं हूँ. नैरेटर को उसने बोला मुराद ने. वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स. हमें तो उस घोड़े को पकड़ना था. यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे. तुम उस तरफ जाओ, मैं दूसरी तरफ जाता हूँ. इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर. अगर तुम उसे पकड़ भी लो, उसके पास चले भी जाओ, तो उसके साथ थोड़ा काइंडली रहना, काइंड होके रहना, मैं वहाँ जल्दी आ जाऊँगा. आई कॉन्टिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड द इरीगेशन डिच. तो मुराद कहाँ गया, नैरेटर तो गया रोड की तरफ और मुराद गया फील्ड्स की तरफ, इरीगेशन डिचेस जहाँ होती थी. इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक. आधा घंटा लग गया उसे पकड़ने में हॉर्स को और वापस आने में. ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन. इसके ऊपर बैठो. द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ. सारा वर्ल्ड मतलब सब लोग जाग चुके हैं इस टाइम. वट विल वी डू आई सेड. अब हम क्या करेंगे. वेल ही सेड, वील ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग. या तो हम इसे वापस ले जाएंगे या हम इसे अगली मॉर्निंग तक छुपा के रखेंगे. ही डिडंट साउंड वरीड एंड आई न्यू हीड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक. मुझे पता था वो ज़्यादा वरीड तो फील नहीं कर रहा था, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि वो वरीड है, टेंस्ड है, तो वो ज़रूर इसे छुपा ही देगा, उसे वापस नहीं करके आएगा. नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट. ना थोड़ी देर के लिए भी नहीं और किसी भी कीमत पर नहीं. वेयर विल ही हाइड हिम आई सेड. तो तुम इसे कहाँ छुपाओगे, मैंने पूछा. हम इसे कहाँ छुपाएंगे. आई नो अ प्लेस ही सेड. हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स आई सेड. मैंने उससे पूछा कि कितना लंबा टाइम हो गया तुमने इसे चुरा रखा है. इट सडनली dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. वो काफ़ी दिनों से इस पे राइड कर रहा था, ये उसे समझ में आ गया था नैरेटर को. और वो नैरेटर के पास आज इसलिए लेके आया था क्योंकि मुराद जानता था नैरेटर उसे कितनी डिज़ायर है, लॉन्ग्ड है वो राइडिंग करने के लिए.
Who said anything about stealing a horse? He said. किसने कहा तुम्हें इसके बारे में, stealing a horse के बारे में? Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? कितने दिन से तुम इस पे राइडिंग करनी स्टार्ट कर रखी हो तुमने? Not until this morning, he said. इस मॉर्निंग से तो नहीं, उसने बोला. Are you telling the truth? क्या तुम सच बोल रहे हो? Of course not, he said. Honestly उसने बोल दिया कि नहीं नहीं मैं सच नहीं बोल रहा हूँ. But if we are found out, that's what you are to say. I don't want both of us to be liars. अगर हम इसे पाया है तो तुम्हें भी कहना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठ बोलें. All you know is that we started riding this morning. सब यही जानते हैं और तुम अच्छे से ये जानते हो कि हमने जो ये राइडिंग स्टार्ट की है वो सिर्फ आज मॉर्निंग से स्टार्ट किया. ऑल राइट, आई सेड. मैंने कहा ठीक है. ही वॉक्ड द horse quietly to the barn of a deserted vineyard which at one time had been the pride of farmer named Fedvizian. Fedvizian के जो फेमस पॉपुलर उनके विनयार्ड थे जो कि जिनका एक बांध था जहाँ पे वो स्टोर करके रखा जाता था. डेजर्टेड विनयार्ड था और जो उसका एक बांध था तो वहाँ पे वो उसे उस बांध में की तरफ उस हॉर्स को लेके चला गया. देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बान. और उस बान में, जहाँ बान क्या होता है जहाँ पे हम फूड को स्टोर करके रखते हैं, तो वहाँ क्या स्टोर किया हुआ था? ओट्स को स्टोर किया हुआ था, एक तरह से दलिया हम कह सकते हैं. और ड्राई अल्फाल्फा. अल्फाल्फा होता है एक तरह का फूड ही होता है, लाइक सैलड्स की तरह हम यूज़ करते हैं या बीन्स की तरह उसे हम यूज़ करते हैं. अ प्लांट ग्रो एज फूड स्पेशली फॉर फार्म एनिमल्स के लिए प्लांट किया जाता है और यूज्ड इन सैलड्स बिफोर इट इज़ कम्प्लीटली डेवलप्ड. ये जब तक पूरा पक नहीं जाता तब तक इसे सैलड की तरह यूज़ किया जाता है. तो बान में ये दो चीज़ें स्टोर की हुई थी फेडविजियन ने. वी बिगेन वॉकिंग होम. और फिर उसके बाद वहाँ बान में उसे रखने के बाद हम लोग कहाँ चले गए? घर की ओर चले गए. इट वॉजेंट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली. ये आसान नहीं था, मुश्किल बहुत था हॉर्स को बिहेव कराना बहुत अच्छे से. एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइड. एक बार तो वो ऐसे दौड़ना चाहता है जैसे कि वो वाइड एनिमल हो, जंगली जानवरों की तरह वो रन करना चाहता है. बट एज आई हैव टोल्ड यू, आई हैव अ वे विद द हॉर्स. लेकिन मैंने जैसे तुम्हें बताया था मेरे पास एक वे है हॉर्स को चलाने का. आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्टेड टू डू. मैं उसे वो सब कुछ करा सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ. हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी. मुराद ने बोला हॉर्सेस मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं. हाउ डू यू डू इट? आई सेड. तो मैंने पूछा तुम ये कैसे करते हो? आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड. येस, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग? किस तरह की? सॉर्ट मीन्स काइंड. किस तरह की अंडरस्टैंडिंग? आई सेड. अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड. वेल, आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद द हॉर्स. उसने कहा कि हाँ, मैं कहता हूँ और मैं विश करता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे उस अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पहुँचा जा सके जहाँ पे मैं हॉर्सेस को समझ सकूँ. यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड. मुराद को ऐसा लग रहा था मैं तो बहुत बिग हूँ, मैं एल्डर हो चुका हूँ अभी से. तो उसने बोलते तुम तो बहुत छोटे बच्चे हो अभी. व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट. जब तुम 13 ईयर्स हो जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा इसे कैसे करना है. आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट. हार्टी मीन्स हियर हेल्दी ब्रेकफास्ट उसने लिया. दैट आफ्टरनून माई अंकल खौरसोव केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स. तो फिर उस टाइम पे तब खौरसोव अंकल आए जो हमेशा क्या बोलते थे? पे नो अटेंशन, इट हैज़ नो हार्म. तो उनके घर किस लिए आए वो? कॉफ़ी और सिगरेट्स के लिए. ही सेट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री. पीछे के लोगों के बारे में, उस एरिया के बारे में वो याद करते थे, बातें करते थे. देन अनदर विजिटर अराइव्ड. एक और विजिटर वहाँ आया, अ फार्मर नेम जॉन बायरो. जॉन बायरो कौन था? एन एस्ट्रियन. एस्ट्रियन जो आउट ऑफ लॉनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन. और वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता था और कोशिश करता था अर्मेनियन सीखने की. माई मदर ब्रॉट द लॉनली विजिटर कॉफ़ी एंड टबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड
एंड स्मोक्ड। वो पार्लर में बैठे थे, हाँ मीन्स सिटिंग रूम में बैठे थे, तो वहाँ पे उसकी मदर ने उन्हें ये सब चीज़ें ऑफ़र करी। एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली, एक सांस लेते हुए, लंबी सी सांस लेते हुए सैडली ही सेड माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन। तो उसने दुख में होते हुए बोला कि मेरा जो लास्ट मंथ हॉर्स गुम हो गया था वो अभी भी गायब है, अभी भी गया हुआ है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मैं इसे समझ नहीं सकता कि वो हॉर्स कहाँ गया। तो हॉर्स किसका था? मिस्टर जॉन बायरो का। माई अंकल खोर्सो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, इरिटेट हो गए और उन्होंने जोर से चिल्ला, वट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स। उन्होंने कहा इट्स नो हार्म, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसमें लॉस की क्या बात है अगर हॉर्स चला गया था। हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हमने अपनी होमलैंड नहीं खो दी है। वट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, इसमें हॉर्स के गुम होने पर क्या रोने की बात है। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, बट वट ऑफ माई सरे। सरे क्या होता है? सरे एक 4 व्हील्ड गाड़ी कह सकते हो जो हॉर्सेस से या एक तरह से तांगा बना के चलाई जाती है। तो वो कहता है कि तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती होंगी। सिटी ड्वेलर, ड्वेलर मीन्स लिविंग पर्सन, जो सिटी में रहते हैं उनके लिए कोई मैटर नहीं करता है। व्हाट गुड इज़ अ सरे विदाउट अ हॉर्स, लेकिन उसका क्या बेनिफिट है एक हॉर्स के बिना, है ना। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल कॉर्स ऑफ रॉड, और फिर जोर से चिल्ला के बोलते हैं ध्यान मत दो इस पर। आई वॉकड 10 माइल्स टू गेट देयर, जॉन बायरो सेड, कहता मैं उसको पाने के लिए मैं तो 10 माइल्स तक जा चुका हूँ। यू हैव लेग्स माई अंकल खॉर्सोव शाउटेड, तुम्हारे पास लेग्स हैं, अंकल खॉर्सोव ने चिल्ला के बोला। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, जॉन बायरो कहने लगा कि मैं इतना चल चुका हूँ तो मेरी लेफ्ट लेग पेन कर रही है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खॉर्सोव रॉड, फिर चिल्ला के बोले इस पर ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, कह रहा है कि मैंने $60 में उसको ख़रीदा था, मेरे इतने पैसे लगे हुए हैं उस पर। आई स्पिट ऑन मनी माई अंकल खॉर्सोव सेड, कहता मैं थूकता हूँ पैसे पे, स्पिट मीन्स थूकना। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, स्लैम्ड द स्क्रीन डोर। तो वो खड़ा हो जाता, इतना गुस्सा आया था उसकी अंकल खॉर्सोव की बातें सुन के जॉन बायरो को। वो खड़े होके चलना स्टार्ट कर देते हैं घर से बाहर, और स्टॉक्ड आउट मतलब वॉकिंग आउट, स्लैमिंग मतलब जोर से बैन करते हुए, एकदम आवाज़ करते हुए डोर को वो चले जाते हैं। माई मदर एक्सप्लेन्ड ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, शी सेड, उन्होंने कहा कि अंकल मिस्टर खॉर्सोव का दिल बहुत अच्छा है। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन, होम सिक हो गया है, घर की याद आ रही है उनको, और एक वो बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े इंसान हैं। द फार्मर वेंट अवे, वो चला जाता है। एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराद हाउस, अब उसको तो पता था कि चोरी की बात बाहर आ चुकी है और जॉन बायरो ढूंढ रहे हैं हॉर्स को, तो फटाफट से भाग के मुराद कहाँ जाता है, वो नैरेटर कहाँ जाता है, मुराद के घर में। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई, तो एक बर्ड जो जिसके विंग्स हर्ट हो चुकी थी उसको ठीक कर रहा था, रिपेयर कर रहा था, ट्रीट कर रहा था एक्चुअली, जो उड़ नहीं पा रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो बातें भी कर रहा था बर्ड से। कौन सा बर्ड था? रॉबिन। वट इज़ इट, ही सेड, क्या है? द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, ही विजिटेड आवर हाउस, ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, यू हैव हैड इट मंथ, तुमने एक महीने से ले रखा है। I want you to promise not to take it back until I learn to ride, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम इसे वापस नहीं दोगे जब तक मैं सीख नहीं लेता हूँ। My cousin Murad leaped to his feet, एकदम अपने पैरों पे खड़ा हो गया जंप करके। What? He roared. Are you inviting a member of the Garroglanian family to steal? क्या तुम किसी मेंबर को इनवाइट कर रहे हो स्टीलिंग करने के लिए? The horse must go back to its true owner, हॉर्स को तो चले जाना चाहिए वापस उसके ऑनर के पास। When I said, मैंने कब कहा? In 6 months at least, at the latest, he said. He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. बर्ड ने 2 बार कोशिश की लेकिन गिर गया, लेकिन फिर उसके बाद लास्ट में वो उड़ गया, फ्लाई अवे किया उसने, और हाई उड़ा और स्ट्रेट चला गया। अर्ली
Every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the desert vineyard where we were hiding it and rode it. तो अब बात सामने आती है कि मुराद और उसके कज़न मीन्स नैरेटर और मुराद दोनों राइडिंग कर रहे थे विनयार्ड में, और फिर राइडिंग करने के बाद विनयार्ड में, डेजर्ट विनयार्ड में हॉर्स को छुपाते थे और फिर उसके बाद फिर से राइडिंग करते थे. तो ये 2 वीक्स हो चुके थे उन्हें ऐसा करते हुए. एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स when it was my turn to ride alone leaped over vines and small trees and threw me and ran away. और हर मॉर्निंग क्या होता है, ये काम तो चल रहा था 2 वीक से, लेकिन हर मॉर्निंग जब नैरेटर की बारी आती थी तो हॉर्स जो है वो इधर उधर चला जाता था, उसे कंट्रोल ही नहीं हो पाता था, भाग जाता था. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. जिस तरह से मुराद राइड करता था वैसे ही वो सोचता था कि टाइम आएगा ज़रूर जब वो सीख जाएगा जैसे मुराद राइडिंग करता है. One morning on the way to Vizian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro who was on his way to town. अब क्या हुआ कि लेकिन उसने कभी होप नहीं छोड़ी. उसे था कि एक ना एक दिन ऐसा टाइम ज़रूर आएगा जब मुराद सीख जाएगा नैरेटर सीख जाएगा मुराद की राइडिंग करना, है ना. तो फिर वन मॉर्निंग को क्या हुआ, जब वो लोग जहाँ पे वो अपने हॉर्स को हाइड करते थे वहाँ से जाते हुए उन्हें रास्ते में वो चले गए एकदम से जॉन बायरो के फार्म में, और वहाँ से जॉन बायरो आ रहा था फार्मर. तो मुराद क्या कहता है, लेट मी डू द टॉकिंग, मुझे बात करने दो. माई कज़न मुराद सेड, आई हैव अ वे विद फार्मर्स, मेरे पास तरीका है उनसे बात करने का. गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर. वो फार्मर को कहता है गुड मॉर्निंग. द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, बड़े ध्यान से वो स्टडी करता है हॉर्स को. गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड. तो उन्होंने कहा मेरे फ्रेंड्स के बच्चों गुड मॉर्निंग. व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे हॉर्स का नाम क्या है. माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन अर्मेनियन में जल्दी से उसने जवाब दिया इसका नेम है माई हार्ट. अ लवली नेम जॉन बायरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स. आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो. अब जॉन बायरो ने पहचान लिया था अपने हॉर्स को. उसने कहा कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये तो वही हॉर्स है जो कई वीक पहले मेरे यहाँ से चुराया गया था. मे आई लुक इंटू हिज माउथ, मैं इसके मुंह को देख सकता हूँ. ऑफ कोर्स मुराद सेड. द फार्मर लुक्ड इंटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, टुक फॉर टूथ फॉर टूथ, दांत से दांत तक उसने चेक किए. ही सेड, आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स. अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता जो कि ऑनेस्टी के लिए फेमस हैं, तो कह रहा है कि मैं कसम खा के कहता कि ये मेरा ही हॉर्स है. द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी. तुम्हारी जो फैमिली की ऑनेस्टी है, उसकी पॉपुलैरिटी, उसका जो फेम है, उसकी जो प्रसिद्धि है, वो बहुत अच्छे से मैं उसे जानता हूँ. येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स. ये हो सकता है कि ये उसका कोई ट्विन्स हो. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. उसने अपनी आंखों पे विश्वास तो किया लेकिन अपने दिल से ज़्यादा. Good day my young friends. तो उन्होंने कहा मेरे छोटे फ्रेंड्स गुड डे. गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड. उसने भी गुड बाय बोला. Early the following morning we took the horse to John Byro's vineyard and put it in the barn. फिर से वो जॉन बायरो के विनयार्ड में लेके गए और उसे वहाँ बान में उसे छोड़ दिया. द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड. वो उनके आगे पीछे घूम रहे थे बिना शोर मचाए. द डॉग्स, आई विस्पर्ड टू माई कज़न मुराद. उसने धीरे से बोला, विस्पर्ड करना इन अ वेरी लो साउंड. वो उसे बोलता है कि डॉग्स, आई थॉट दे वुड बार्क. मुझे तो लग रहा था कि वो बार्किंग करेंगे, भौंकेंगे. दे वुड एट समबडी एल्स, क्योंकि वो करते हैं कोई और किसी और को देख के. ही सेड, आई हैव अ वे विद डॉग्स. तो मुराद जैसे हमेशा बोलता है कि मेरे पास एक वे है उनसे बात करने का, तो उसने कहा कि मेरे से डॉग से भी डील करने का वे है. माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स. उसने क्या किया, हॉर्स के ऊपर से अपनी आर्म्स को रखा. प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, पेटेड इट. और फिर उसे पैट किया उसके ऊपर
थपथपाया एंड देन वी वेंट अवे, और फिर हम चले गए. दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सर्रे. वो अपनी गाड़ी पे, घोड़ा गाड़ी पे वो हमारे घर आया. एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न. और उसने वो घोड़ा दिखाया जो चोरी हो गया था और रिटर्न आ गया है, वापस आ गया है. आई डू नॉट नो वट टू थिंक, ही सेड. उसने, जॉन बायरो ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या सोचूं. द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर. वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है. बेटर टेम्पर्ड, उसका नेचर जो है, बिहेवियर जो है वो भी अच्छा हो गया है. टू आई थैंक गॉड माई अंकल खॉर्सोव हु वॉज इन द पार्लर. वो उसी सिटिंग रूम में बैठे थे. बिकेम इरीटेटेड, और इरीटेटेड हो गए एज यूजल. एंड शाउटेड, और चिल्लाए भी जैसे हमेशा करते हैं. क्वाइट मैन, क्वाइट, शांत हो जाओ मैन, शांत हो जाओ. योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न. तो हमारा हॉर्स वापस आ गया है. पे नो अटेंशन टू इट. इस पे ध्यान मत दो. दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर. I hope you got it. Now read it thoroughly. If you don't, then watch the video again. Bye bye. Thank you.